کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے, کسی اور بادشاہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں, ہیرودیس کی جو بادشاہت ہے نا, اس کا جو تخت و تاج ہے نا, جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ وہ مائنڈ سیٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے, وہ لیگل طریقے سے اس تخت پر نہیں بیٹھا تھا. لیگل طریقے سے وہ بادشاہ کے طاقت پر, منصب پر نہیں بیٹھا ہوا تھا. اس وجہ سے اسے ڈر ہے اور خطرہ ہے. اگر آپ کو خدا نے کھڑا کیا ہے تو کون ہے جو آپ کو گرا سکتا ہے؟ اگر خدا نے خود آپ کے ساتھ ہو کر آپ کو بلیس کیا ہے اور آپ کو استعمال کر رہے ہیں, تو واقعہ ہی خدا کے علاوہ کوئی اور آپ کو گرا نہیں سکتا. تو جو چور راستے سے آتے ہیں نا, تو پھر وہ فکر مند ہی رہتے ہیں, پھر وہ پریشان ہی رہتے ہیں, پھر انہیں ڈر لگا رہتا ہے, کیونکہ انہوں نے پتا ہے میں بھی غلط رستے سے آیا, میں بھی غلط طریقے نہ آیا, تو لازم ہے دوجا بھی جڑا میرے برابر آ گیا نا, تو انہیں بھی کوئی غلطی پینڈا پھٹ رہا ہے, وہ بھی کسی غلط طریقے سے آیا ہوگا. اس لیے ہیرودیس جو ہے وہ حسد کو پریزنٹ کر رہا ہے, نفرت کو پریزنٹ کر رہا ہے, عداوت کو پرنٹ کر رہا ہے. وہ اس بات کو ہمارے سامنے لا رہا ہے کہ میں اپنے اندر ایک منفی شخصیت رکھتا ہوں. میری ذہنیت جو ہے, میری سوچ جو ہے وہ خلیص ہے, منفی ہے, اور میں کسی دوسرے کو قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہوتا ہے نا, بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں پر دو خادم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کئی بار معذرت کے ساتھ بڑی معافی مانگ کے کئی بار بیٹھے اکٹھے ہیں کنونشن میں, سیمینار میں, فیلوشپ میٹنگ میں, اظہار محبت ہے, بڑے خوبصورت الفاظ ایک دوسرے کے لیے, لیکن جیسے ہی اس کرسی سے اس شخص سے جدا ہو جاتا ہے, اس کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی جاتی ہے, اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دی جاتی ہے, اس کو ڈیگریڈ کرنا شروع کیا جاتا ہے, اس کے خلاف منفی کلمات ادا کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں. کہ یہ مصیبت ہے, کہ یہ یسوع مسیح کی تعلیمات ہیں کہ ہم مسیحی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ سیزن ہے جس میں ہم داخل ہیں اور جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کو پرنس آف پیس کی آمد کہا جا رہا ہے نا, کہ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ آیا ہے, اور فرشتوں نے آسمان پر سے ایک بڑی تعداد میں اعلان صلح کیا ہے کہ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح ہے. کیا ہمارے چرچز کے اندر, ہمارے خاندانوں کے اندر یہ ہیرودیسیت پائی جاتی ہے کہ نہیں, کہ ہم کسی دوسرے کے وجود کو کس طور سے قبول کر رہے ہیں, ہم کسی دوسرے کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں, کسی دوسرے کو ابھرتا ہوا خدا کی خدمت میں آگے آتا ہوا دیکھ کر ہمارا ریئیکشن کیا ہے, ہمارا رد عمل کیا ہے, ہم اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں. پادری صاحب نے بڑا سیاپا ہوتا ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے ایک پاسبان کے لیے, کہ اگر اس کے چرچ میں کوئی بیٹی یا کوئی بیٹا روحانی طور پر گروتھ کرتا ہے, تو پادری صاحب ہور سے آپ پچ پا جاتے ہیں, دعاواں تو رات مانگتے رہتے ہیں, میری کلیسیا ترقی کریں, میری کلیسیا کے بچے آگے بڑھیں, میری کلیسیا گروتھ کریں. لیکن جب موقع گروتھ آتا ہے نا, تو پھر پادری صاحب کے لیے پرابلم ہے. اگر انہوں نے موقع دیتا تو دوجا لڑ پائے گا, اگر انہوں نے موقع ملا تو تیجا لڑ پائے گا. کہنا جی اینو کل لے جا چاہیے, میں نہیں دیکھتا گاندہ, سوری سر, مجھے کیوں پیچھے کیا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہاں پر میں ٹک گیا ہوں وہاں پر کوئی اور نہیں آ سکتا اور نہیں آنا چاہیے. ہیرودیس بھی اسی ذہنیت کے ساتھ اس رد عمل کو اپناتا ہے, اور وہ یہاں تک اتر آتا ہے کہ وہ ایک قاتل ٹھہرتا ہے, اور وہ بھی دو برس کے ان معصوم ننھے اور پیارے بچوں کا قاتل بن جاتا ہے. آپ تو نہیں ہے نا قاتل؟ ہاں جی نہیں ہے نا, آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا قاتل, نہیں ہے نا.
इसके अंदर नफरत की इंतहा ये है, हसद की इंतहा ये है, गुस्से की इंतहा ये है, और इसके अंदर जो मनफियत है उसकी तातरात ये है कि वो इस हद तक उतर आया है, और हसद ने, नफरत ने, अदावत ने उसे इस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि उसके माथे के ऊपर कातिल का लेवल लगे है, और उसने दो बरस के बच्चों को कत्ल करवा दिया, डेड करवा दिया, स्पाई करवा दिया कि वो कभी रोडमा ही ना हो, वो कभी बढ़े ही ना। याद रखिए कलीसिया, ईमानदारों, हमने कई कलीसियाई बच्चों को कत्ल कर दिया है, कई कलीसियाई बरकतों को हमने अपने चर्च और अपने खानदानों से रिमूव कर दिया, निकाल दिया, हाँक दिया। उसकी वजह पता क्या है? हमारे अंदर भी हेरोदिसियत सवार रहती है। हम हसद से, नफरत से, अदावत से, बुरा से और गुस्से से भरे हुए हैं, और कई हमारे फैसले जो गुस्से में होते हैं वो हमें खुदा की नजरों से गिरा देते हैं, और जेड़ा खुदा ने दिता होता ना वो भी फिर खुदा किसे नहीं दे देता। एक हवाला मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पहले कहा मुझे जितना वक्त दिया मैं कोशिश करूंगा मैं उसे मिला सकूं। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 3रा बाब, उसकी 15वीं आयत। खुदा यहाँ पर मौजूद है, अगर उनमें से या बच्चों में से कोई भी निकाल लेता है तो वो पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना रसूल का पहला खत 3रा बाब, उसकी 15वीं आयत को कोई पढ़ सकता है? जोर से सुनिएगा और भाई जी आहिस्ता से पढ़िएगा। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है। कलाम मुकद्दस आज क्रिसमस के इस सीजन में मुझसे और आपसे मुखातिब है, और लिखा हुआ है कि जो कोई यहाँ पर मर्द और औरत को अलग नहीं किया गया जी, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। कलाम मुकद्दस कहते हैं जो कोई चर्च में से अपने भाइयों से अदावत रखता है वो किलर है, वो कातिल है, वो मुजरिम है, और उसके अंदर हेरोदिसियत पाई जाती है, क्योंकि उसकी नफरत ने उसको इस तरह कायल कर दिया और खड़ा कर दिया कि वो दो साल के बच्चों का कातिल ठहरा है। बाइबल कहती है जेड़ा अपने भरा नाल अदावत रखदा है वो भी हेरोदिस है, वो भी कातिल और खूनी है। और अगला हिस्सा कहता है किसी खूनी के अंदर, किसी कातिल के अंदर खुदा की बादशाही। पढ़े फिर से सर। और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं। किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं। फिर मैं और आप अपना मुआसना कर सकते हैं कि हम किस जगह पर खड़े हैं, हम किस ज़हनियत से, किस किरदार के साथ, किस सोच के साथ, किस रवैये के साथ इस जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा जो कोई अपने भाइयों से, ते भैनाएं तो निकल ही जानी है, याद रखिए जी, क्योंकि यहाँ पर भाई लिखा हुआ या भाइयों लिखा हुआ, तो यहाँ पर ये मत समझिएगा कि यहाँ पर बहनों का जिक्र नहीं है। जो कोई बहन अपनी नंद से, अपनी सास से, अपनी भाभी से, अपनी नजठानी से, अपनी दुरानी से, अपने उन साथ जुड़े हुए रिश्तों से अदावत रखती है, बाइबल कहती है सुनो ईमानदारों, खुदा का कलाम उनको कातिल और मुजरिम कहलाता है, और कहता है कि किसी खूनी में, किसी कातिल में खुदा की बादशाही या हमेशा की जिंदगी नहीं हो सकती। तो क्रिसमस के इन दिनों में और क्रिसमस के इस सीजन को जब हम मना रहे हैं और हम मसीह यीशु का तजस्सुम या तजस्सुमुल मसीह जिसको क्रिसमस और बड़ा दिन हम कह रहे हैं, वो एक बड़ा पैगाम रखता है हमारे लिए।
अगर हम मसीही हैं, अगर हम मसीह यीशु के पैरोकार हैं, तो कलाम कहता है कि यीशु मसीह इस जमीन पर मेरे और आपके लिए नमूना बना है, और खुदा ये चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के हम शक्ल बनकर जिंदगी बसर करें। पता है यीशु मसीह ने कैसे जिंदगी बसर की है? सारे ने पता ना, सारे ने पता ना। ते साडे क्रिसमस ते नहीं एक दूसरे नाल बूठे बड़े वड्डे वड्डे बने होंदे ने। हम साल बाद भी एक दूसरे के घर जाना या अपने उस नफरती काम को या उस अदावत को या उस झगड़े को खत्म करना पसंद नहीं करते। हम बढ़ाते हैं। पिछले बड़े दिन ते उन्होंने उन्हों तक केक देता, साढ़े घर ते नहीं आया। जी है ना, हमने भी नहीं जाना। इस नफरत को केक की वजह से तोड़ दी जाती है, और फिर हम हेरोदेस की तरह उल्टी चाल चलना शुरू करते हैं। फिर हम उनके अरमानों का खून करने का प्लान करते हैं। फिर हम उनकी खुशियों को बर्बाद करने का प्लान करते हैं। खुद दे आगे होंगे नहीं, फिर हम घर बैठ के रिश्तेदारों के तीर चलाते हैं। फिर हम नफरत की गोलियों की बुछार करते हैं। फिर हम गुस्से की तलवार उनके गर्दन पर रखकर कई बार उनका खून करते हैं। फिर भी ऐसी मसीहियां, फिर भी ऐसी प्रिंस ऑफ पीस यीशु मसीह दा जन्मदिन मना रहे हैं ते बड़े जोशो खरोश ना। उन्हें भी सितारा लाया होता जिन्हें पूरा साल ही गिरजे नहीं जाना। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बड़ी माजरत ना जे किसी ने लाया तो भाई, लेकिन जरूरी यह है कि जीसस यीशु मसीह जो सुबह का चमकता सितारा है वो हमारे दिलों से रोशन है। वो हमारी जिंदगी से, वो हमारे किरदार से, वो हमारे कामों से दूसरों को नजर आए। छातता सितारा लगा या नहीं लगा, किरदार, बातें, रवैया और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ये बताएगी कि ऐठा यीशु रहता है। ये जिंदगी यीशु का घर है, ये खानदान यीशु के मामूर है, और यहाँ पर यीशु की चरनी मौजूद है, और वो आपके अंदर का रोशन सितारा दूसरों को भी यीशु के पास लेकर आ जाएगा। कई बार साड़ी वजह से बहुत सारे मसीह तो दूर हो जाते हैं। हमारे किरदार, हमारे रवैये और हमारे नखरों के बायस, हमारे एटीट्यूड के बायस, हमारी अदावत के बायस वो चर्च से दूर चले जाते हैं। वो पासबानों की पासबानी से दूर चले जाते हैं। वो आपके सख्त रवैयों की वजह से ठोकर खा जाते हैं। उनकी रूहानी जिंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। क्या आप ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या आप ऐसा किरदार लेकर इस क्रिसमस सीजन के अंदर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या आप बहुत सारे बलून लगा रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह जो है वो अभी तक नहीं उभरा, वो अभी तक आपकी जिंदगी से, आपके खानदान से दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा है तो चर्च, मुझे और आपको इन सारी बातों पर गौर करने की जरूरत है। हम किस रवैये से, किस किरदार से जिंदगी को बसर कर रहे हैं। अगर आप इसी हिस्सा से थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, मुझे पता चल गया है कि 5 मिनट रह गए हैं, थोड़ा सा ऊपर आ जाएं तो कलाम मुकद्दस में बुजुर्ग यूसुफ की जिंदगी मेरे और आपके लिए बड़ा मुस्बत और पॉजिटिव किरदार है। क्या लिखा है? यूसुफ रास्तबाज था। यूसुफ क्या है? यूसुफ रास्तबाज है। लिखा है कि वो मुकद्दसा मरियम को बदनाम, ऐसे लिखा है। ये है कलीसिया की खूबसूरत तस्वीर कि वो कलीसिया ईमानदारों की बदनामी नहीं, रुसवाई नहीं चाहती, बल्कि वो हर हालत में भी वो दूसरों पर पर्दा डालती है, दूसरों को कवर करती है। और कलाम में लिखा है मोहब्बत साबर है और वो सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है, इवन के वो दूसरों को छुपाती है, दूसरों को कवर
करती है, हम दूसरों को नंगा करते हैं। चर्चिस पास्टर्स हैं वो किसी खानदान की मिस्टेक को लेकर, कलीसिया एल्डर सबान जो है किसी एक छोटी सी मिस्टेक को लेकर पूरे लोग चुटंडोरा पड़ देते हैं, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। कलाम में लिखा है यूसुफ रास्तबाज है और वो मुकद्दसा मरियम के बारे में ख्याल करता है कि मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता। क्या आप हेरोदियत में जिंदगी बसर कर रहे हैं या रास्तबाजी का लेबल जो मसीह यीशु में मुझ पर और आप पर लगा है? ये दो चैलेंजेस में आज शाम आपके सामने रख रहा हूं। आपको अपने आप को चेक कीजिए कि हम कहां पर खड़े हैं और हम कैसे रवैये और किरदार के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। मसीह ने तो हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहरा दिया। यूसुफ के बारे में लिखा है वो रास्तबाज था। मैं आपको बताना चाहता हूं आप रास्तबाज हैं। आपका किरदार क्या है? खुदा मुझे और आपको ये समझकर जिंदगी बसर करने का